نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سرزمین نبوت جبل فاران وادی امین ارض مبارکہ دارہ مجد مکہ مکرمہ میں یہ تمام انسانیت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا جو وحی کی نزول گاہ ہے۔ یہ بلد امین ہے جو سردار کائنات کی جائے پیدائش ہے، ان کی پلیس آف برتھ ہے۔ یہ دیار حجاز ہیں جو آخری زمانے میں ایمان کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں مکہ واقع ہے جس کے در و دیوار بڑے پختہ ہیں، اس کی عظمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس جگہ آخری رسول کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ معزز قارئین کے سامنے ہم انہی کا کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے قلم کو تھوڑی دیر تک روک کر ہم ارض نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کریں گے۔ شجر مقدس، پیچھے جو مشکل لفظ تھا ایک دیار، وہ دار سے ہے، جیسے کہ جو ہے دار گھر کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کی جمع ہے۔ تو حجاز جو ہے پہلا نام تھا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ شجر مقدس، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر و معاصی اور ظلم و شرک کی سرزمین سے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا، مطلب انہوں نے پلان کیا کہ وہ یہاں سے جائیں گے، اور شام کی ارض مبارکہ کو ہجرت گاہ بنایا۔ اب جو ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید کے ساتھ مصر میں پڑاؤ کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہوں نے توحید کا میسج سپریڈ کرنے کے لیے مصر میں رکے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ جو ہے سیدہ سارہ علیہ السلام کو، علیہ السلام ان کو علیہما السلام کہہ دیں یا علیہ السلام جو ہے وہ کون سی ہوگی جو فیمیل کے لیے علیہا السلام کہا جاتا ہے انہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے، کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہم عموماً ایک کی طرح بول دیتے ہیں علیہ السلام، لیکن پراپر اگر آپ عربی لکھیں ہیں تو علیہا، مؤنث کے لیے ہا الف ہا والی ضمیر لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ، اب اس یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے پیغام توحید کے ساتھ مصر میں پڑاؤ کیا، مطلب وہاں رکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ جو ان کی وائف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، سیدہ سارہ علیہ السلام کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا جن کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت ہاجرہ کا اب تذکرہ یہاں سے سیدہ ہاجرہ کا شروع ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے دیا؟ زوجہ جو ان کی تھی سیدہ سارہ کو بہترین تحفہ عطا فرمایا، کس فارم میں؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی فارم میں۔ مصر سے ان کا تعلق تھا، وہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور تمام عدنانیوں کی جدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی تو حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی یہ باندی ہبا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب یہ ان کی باندی تھی، جو ہے حضرت سارہ کی، یہ آپ نے دیکھ لیا پہلے کہ سیدہ سارہ کی وہ ان کے پاس تو فتن آئی، ان کی باندھی تھی، انہوں نے کس کی طرف ہبا کر دیا؟ ان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہبا کر کے نا ان کو اس کا مالک بنا دیا، ٹھیک ہے، ان کا مالک بنا دیا۔ اس باندی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گھر جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا انتظام کیا تھا، اب دونوں ایک ہی جگہ رہ رہی تھی نا، سیدہ سارہ علیہ السلام بھی اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی۔ تو سیدہ سارہ علیہ السلام پر تنگ پڑ گئی وہ جگہ،
क्योंकि उनकी बांदी ने एक पाक सिफत बच्चे को जन्म दिया, जो कि वो खुद उस जबकि वो खुद उससे महरूम थी। अब हजरत जो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम हैं, अब वो उसके उनके मालिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके मालिक हैं, और उन्होंने उसके बाद उनके अपना मालिक बन जाने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है। रह वो एक ही जगह पे रही हैं, लेकिन अब वो जगह जो है किसके लिए तंग पड़ गई है? सारा अलैहिस्सलाम के लिए। क्योंकि अब जो है सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा है, जबकि कौन डिप्राइव्ड है? सारा अलैहिस्सलाम महरूम है, अभी वो बच्चा उनके पास नहीं है। वो बच्चे की नेमत से महरूम है। अब इस वजह से क्या हुआ आगे? लिहाजा अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मे वलद बांदी को साथ लेकर राजदाराना और हयादाराना अंदाज में निकल खड़े होते हैं। अब वो कौन किन को लेकर खड़े होते हैं? सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत सीक्रेटली और बहुत ही शाय वाले बाहया अंदाज में लेकर वहां से निकल खड़े होते हैं। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम इस हिजरत को पोशीदा रखने की खातिर अपने नकूशे कदम को मिटाती जा रही थी। अब हम अपने कलम को इस घुटन से बाहर निकालते हैं, ताकि उन्स और कुद्स की सरजमीन के मुतल्लिक बात करें। एक ऐसी जगह जो प्लेस ऑफ अटैचमेंट है, जो एक ब्लेस्ड प्लेस है, एक हॉली प्लेस है, उस सरजमीन के मुतालिक हम बात कर सकें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर को फारान के पहाड़ों के दरमियान, क्या हुआ है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर कौन है, जिनके साथ बेटा है, को फारान के पहाड़ों, अब पहाड़ों की बात हो रही है, फारान के किसके दरमियान? फारान के पहाड़ों के दरमियान वाक़या वादी अमीन में, एक ऐसी वादी है वादी अमीन में, एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठा दिया, ठीक है। वादी अमीन वही बनी जो कि पीसफुल प्लेस होती है जैसे, ठीक है। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा दिया, और उनके पास एक तोशादान में खाना, जैसे हमारे आजकल के करंट जमाने में वो होते हैं लंच बॉक्सेस, समझे ऐसे ही। तो एक उनके पास ऐसे ही था, तो शैतान में खाना और एक मिशकीजे में पानी रख दिया, ठीक है। तो उस खाना था उनके पास उतना, और मिशकीजे में पानी था, वाटर बॉटल जैसे आप समझ लें मिशकीजे को, जिनको पुराने वर्ड्स की आदत नहीं है। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस जाते देखा तो उन पर खौफ और वहशत तारी हो गया। चुनाच खौफ और वहशत मतलब तारी हो जाना, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं। खौफ तो आपको पता है खौफ ही होता है, वहशत एकदम परेशानी और घबराहट होने लगना, कि क्योंकि वो अकेला उन्हें छोड़ के जाएंगे कहाँ, जगह कौन सी है? पारान के पहाड़ों के दरमियान है, कौन सी है? वादी अमीन है, और दरख्त के नीचे हैं वो। और जाहिर सी बात है ऐसे में खौफ और वहशत का तारी होना, या लाइक आपके ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाना, एक नॉर्मल सी बात है। चुनाचे उन्होंने अर्ज किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें किसके सुपुर्द किया है? लाइक कौन है हमारा वाली वारिस? लाइक वो इसलिए कह रही थी कि वो तो जा रहे हैं, मर्द है। आपको पता है कि एक अकेली जगह पर, जो डेजर्ट टाइप जगह हो, इर्द गिर्द आबादी ना हो, पहाड़ देखे ना, पहाड़ों के दरमियान, वहां पर वो अकेली हैं, और वो पूछ रही हैं, सिर्फ छोटा सा बच्चा है पास में, और वो उनसे पूछ रही हमें किसके सुपुर्द किया है। और उनके पीछे जाकर पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? उन्हें समझ नहीं आ रही थी ना कि क्यों ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। रहमदिल आका ने जवाब दिया, वो उनके मालिक है। हाँ, नाम। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने ठंडी आंखों के साथ जवाब दिया। देखें, ये नहीं है कि उनकी आंखें अब गर्म हो गई हैं आंसुओं से, दिल में बेशक एक बेचैनी हो या कैसी भी कैफियत हो, लेकिन उन्होंने ठंडी आंखों के साथ जवाब दिया, फिर आप जाइए, अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। बहुत ही, मैं कहती हूँ, दिलेर बनने वाला ये जुमला है। ये हर एक से अदायगी इसकी इतनी आसान नहीं है। दिस इज नॉट दैट मच इजी जितना उन्होंने कह दिया, फिर आप जाइए। अब कोई गिला न शिकवा कुछ नहीं, वरना पहले तो खौफ और वहशत के आलम में थी ना। तो अब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कतअन दया नहीं करेंगे। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम को चल दिए। चुनाचे कुछ दूर पहुंचकर, जहां सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें ना देख सकती थी,
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की जगह पर मुतवज्जे होकर दस्ते दुआ जो है वो दराज किया। सूरह इब्राहीम की आया नंबर ये 37 है। इसको भी साथ में इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी, बेशक मैं, अस्कंतु, बसाया मैंने, मिन ज़ुर्रियती, अपनी कुछ औलाद को, बिवादिन, कहाँ पर, वादी में, गैर, बगैर, दी जरअन, दी बगैर किसके, दी जरअन बगैर खेती वाली, इंदा पास, बैती का तेरे घर के, अल मुहर्रम हुर्मत वाले, रब्बाना, ए हमारे रब, लियुकीमू, ताकि क्या वो करें, वो कायम करें, अस्सलाता, नमाज, फजअल, पस कर दे, बना दे, अफइदा, दिलों को, दिलों को, मिनन नासी, लोगों के, तहवी, वो मायल हो, इलैहिम, तरफ उनके, वरजुकहुम, और रिज्क दे उन्हें, मिनस समरात, फलों में से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो, लअल्लहुम का माना शायद कि वो भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ताकि वो क्या करें, यशकुरून, वो शुक्र अदा करें। तो ए हमारे रब, यकीनन मैंने अपनी औलाद में से बाज को बेआबो गया वादी, ऊपर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको इसलिए एक्सप्लेन किया कि बगैर खेती वाली, ताकि आपको आसान लफ्जों में पहले ही बात समझ जाते। ऐसी बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है, ए हमारे रब, ताकि वो क्या करे, वो नमाज कायम करे, सो आप लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दें। सुभान अल्लाह, क्या तवक्कुल है। और आप उन्हें फलों का रिज्क दें। अंदाजा लगाएं कि फिर फल जो है वो क्या कैफियत रखता है, ताकि वो शुक्र अदा करें। तो अब ये देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी फलों के हवाले से, ठीक है। और हम जो है क्या फलों को उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? वो चाहते तो कुछ और भी मांग सकते थे ना, सब्जियां भी, गोश्त भी, कुछ भी। के प्यारों के ग्रोह, ये बड़ी मुबारकबाद है कि हम वहशत में सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं और उनके किरदार से इबरत का नूर हासिल कर रहे हैं। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम भी दीगर मोमिनों की, मोमिना औरतों की मानित, ठीक है, उनकी अब एग्जाम्पल, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, उनकी खसूसियात, कि सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम भी दीगर मोमिना औरतों की मानत एक मोमिना औरत है तो वो एक लेडी ना, औरत है, खातून है, जो अपने शहर से हिजरत करती और अपने घर से निकल खड़ी होती हैं, ताकि अपने आका को तकलीफ ना पहुंचाए। वरना रुक भी तो सकती थी ना अभी, कि मैं क्यों जाऊं, आराम सुकून की ये जिंदगी छोड़कर मैं कहीं पर क्यों जाऊं। जिन्होंने उनके साथ एहसान किया था, पहली मोमिना सैयदा सारा अलैहिस्सलाम है, जो बिनते हारान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजा है। और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाता है कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम उन पर गैरत खाती हैं, और दोनों के पास ही औलाद हो जाती तो अलग बात थी। यहाँ पर अभी वो महरूम है सैयदा सारा अलैहिस्सलाम, लेकिन इनके पास तो है। अब यहीं पे औलाद के हवाले से सोचें कि औलाद के साथ इंसान का दिल भी लग जाता है, आपके जज्बात की तस्कीन भी होती है। कहाँ एक औरत बिल्कुल खाली खोली कितनी देर जिंदगी स्पेंड कर सकती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हमारे बच्चों के होने पर, जिनके हैं, शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें औलाद से नवाजा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये तो अपना इज़्न है ना, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे बेटे और बेटियां दे, मिला जुला कर दे, जिसको चाहे सिर्फ बेटे दे, और जिसको चाहे सिर्फ बेटियां दे, और जिसको चाहे सिर्फ बाज रखे। ये हमारी मेरे ख्याल में 26वें पारे में ये आयात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तरबियत के लिए हमें अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये चीजें, तो हमने अपने पास जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना है। सबसे पहली बात कि ये देखिए, आप ऐसे पहाड़ों के बीच में हम बैठे हो तो क्या सर्वाइवल आसान है आजकल के जमाने में, जबकि खतरा, खतरा तो तब भी बहुत था। फिर दूसरी बात जो लर्निंग वाली, हम उमूमन किसी के आगे फल रख देते हैं ना ले जाकर, तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं अच्छा क्या खिलाया हमें, अगर फल ही खिला दिया हमें तो।
देखिए वो उसकी दुआ मांगी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और वही वाली बात है, बात शुक्रगुजारी की है। अब अगली बात जो आई है तरबियत के लिहाज से, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने हिजरत को प्रेफर किया है, तरजीह दी है। कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। और इसलिए क्योंकि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम उन पे गैरत खाती हैं, चुनाचे वो अपनी मालकिन की तकलीफ पर अपने जिला वतन होने को तरजीह देती हैं। ये है वफादारी मालिक के साथ। इवन दो कि उन्होंने हिबा कर दी थी सैयद सैयदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उसके बावजूद सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम कैसे सोचती हैं कि मैं जिस मालकन के पास में थी उसको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं ना ऐसे भी केसेस कि जो लॉन्डी होती है, जो मेड होती है, वही जब बीवी की जगह पे आ जाती है, सौकन बन जाती है, तो क्या वो ये बिहेवियर सोचती है? और उस वक्त वो उस बंदी की क्या हालत होती होगी जो पहली बीवी होती है, जो जब दूसरी ये वाला बिहेवियर इस्तेमाल करती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको आफियत में रखे और इस सिचुएशन से बचाए। और ये यहाँ पर देखें क्या उन्होंने गैरत मतलब खाती हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों मेरी मालकन किसी भी लिहाज से मेरी वजह से जो है ना वो तकलीफ में आए। तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर ली? हिजरत, माइग्रेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इस पाक दामन मिस्री खातून ने कैसा किरदार पेश किया? क्या सौकने इसकी इक्तदा करेंगी? पूछा जा रहा है अब कि जो इसको पढ़ रही है जो भी बंदी, और वो इस फेज से अगर गुजरी है कि अगर वो सौकन है, तो क्या वो इस मामले को फॉलो करेगी कि वो ahsan बन जाए? हम हमारे महबूब कारहीन भी इसको पहचान चुके हैं। लिहाजा अपने भाई के नफे को क्या कोई तरजीह देगा? कोई भी इंसान अब अपने आप को सोचे कि अगर मेरे सामने किसी भी इंसान को, बहन या भाई, कोई भी पर्सन है, कोई भी शख्स है, अगर उसको मेरी वजह से कोई नफा पहुंच सकता है, तो क्या वो उसको प्रेफरेंस देगा? बहुत दिल गुर्दे की बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और उसकी रदा के लिए क्या किसी तकलीफ को बर्दाश्त करेगा? ये एक सबक है मेरे और आप हम सब के लिए। इस वाकये का दूसरा सबक ये है कि सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को खुद खतरनाक किस्म की बेआबो गया वादी, गैर जी जरकन, क्या है आपके सामने, पीछे भी हम पढ़ के आए ना, गैरी जी जरकिन, ऐसी वादी जिसमें कोई खेती कुछ नहीं है, बेआबो गया है। समझ ले कि बिल्कुल ही बंजर सी वादी है, कुछ भी नहीं है वहां पर, में छोड़ दिया जाता है, जिसमें दूर दूर तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, सर दर्द हो जाए, पेट में कोई मसला हो जाए, कोई नहीं है दूर दूर तक पूछने वाला। उनका खौफ भी जाहिर है और उनका फिक्र गम भी पोशीदा नहीं है। खौफ भी जाहिर हो रहा है और उनकी फिक्र, उनकी सोच और गम, परेशानी छुपी हुई तो नहीं है, पोशीदा तो नहीं है ना। वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करती हैं, आप हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? और जब वो ये जवाब सुनती हैं, हाँ अल्लाह ताला ने मुझे इसका हुक्म दिया है, उस वक्त उनके हकीकत ईमान का मुकाम जो है वो वाजिया हो जाता है, जिस तक दुनिया की और कोई औरत नहीं पहुंच सकती। क्योंकि वो कहती है आप जाइए, अल्लाह हमें वाया नहीं करेगा। ये है वो ईमान जिसकी हमें जरूरत है। यह है वो तवक्कुल जो जिंदा ईमानी अकीदे का शानदार नतीजा है। और जिस ईमान का नतीजा इस जैसा तवक्कुल नहीं है, तो वो ईमान कैसा है? इंतहाई नाकिस और बहुत कम है। लिहाजा हमें ईमानी कामिल तलाश करना चाहिए, खशियत और मोहब्बत के साथ साथ तवक्कुल भी जिसका नतीजा होता है। हमें ऐसा ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है जो ईमानी कामिल हो, जिसमें खशियत और मोहब्बत के साथ साथ तवक्कुल भी मौजूद हो, और तवक्कुल भी आला दर्जे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को हमने वादिये अमीन में रातें गुजारते छोड़ दिया था। दोबारा हम उनकी जानब वापस आते हैं और वाकयात बयान करके उनका अहवाल मालूम करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता है। वो हमारे इज़्ज़ो मजद की बुनियाद है। वो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाऊ अजदाद में से एक हैं। तो सच्ची रवायात हमें बताती हैं कि सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के मिशकीज़े का पानी खत्म हो गया, उनके गोशा जिगर को प्यास महसूस हुई,
मतलब किन की बात की जा रही है? एक तो उनका पानी जो है उनके पास जितना भी अवेलेबल था वो सब खत्म हो गया, और उनका जो बेटा था उनके पास, छोटा सा बेबी, उसको बहुत प्यास महसूस हो रही थी। और उन्होंने इधर उधर पानी तलाश किया, मगर थक हार कर बैठ गए। उन्होंने बहुत पानी इधर उधर तलाश करने की कोशिश की, मगर उन्हें पानी नहीं मिला। आखिर वो थक कर बैठ गई। जब उन्होंने नूरे निगाह को शिद्दत प्यास में बुलबुलाते देखा, उन्हीं की बात की जा रही है, पहले गोशे जिगर कह के और बाद में नूरे निगाह कहकर उनके बच्चे की बात की जा रही। जब वो बिलबला उठा, उसको इतनी शिद्दत की प्यास लगी कि वो बिलबला उठा, वो तड़प रहा है, और करीब था कि उनका जिगर छलनी हो जाता, कि मतलब वो उनकी बेचैनी संभाली ना जाती उनसे, इस कदर बेचैन हो जाती। उन्हें एक जानब बुलंद मकाम दिखाई दिया। उन्होंने देखा एक तरफ तो एक बुलंद मकाम जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इस जो ये जो लोकेशंस है ना, इंशाल्लाह अपने अगले सेशंस में इन लोकेशंस के नाम भी आएंगे इंशाल्लाह। तो उन्हें एक जानब बुलंद मकाम दिखाई दिया, ये सफा नामी पहाड़ था। अभी ये से आप सफा समझिए, तो ये सफा नामी पहाड़ था। उस पर चढ़कर उन्होंने दाएं बाएं देखा, मगर ना पानी नजर आया और ना ही कोई शख्स दिखाई पड़ा। देखा तो उन्होंने है हाई राइज प्लेस को कहीं दूर, और वो सफा नामी प्लेस है, और उन्होंने देखा राइट और लेफ्ट देखा है, लेकिन पानी स्टिल उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा, और ना ही कोई पर्सन दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने सामने देखा और वहां एक बुलंद मकाम पाया। उनके सामने एक बुलंद मकाम था, ये मरवा नामी पहाड़ था। ठीक है। अब उन्हें एक जानब बुलंद मकाम दिखाई दिया था तो वो सफा नामी पहाड़ था, और एक जानब वो देखती हैं हाई राइज मजीद प्लेस जो है वो मरवा नामी पहाड़ था। चुनांचे उतर कर उन्होंने उस जानब जाना शुरू कर दिया। वादी के नशेब में पहुंचकर दौड़ी और उसको क्रॉस कर, वो पहुंची है वहां पर, और दौड़ दौड़ कर पहुंची है, उसको क्रॉस करेंगी। वो बराबर चलती रही, हत्ता के मरवा पहाड़ी तक पहुंच गई। इस पर चढ़कर दाएं बाएं देखा, मगर कुछ भी नजर ना आया। एक राउंड उन्होंने ले लिया, जहां पे हम जाके सफा और मरवा करते हैं वो जगह बताई जा रही है कि उन्होंने वहां से लेकर वहां तक गई। और जिन लोगों ने सवाई वहां पे की है उनको अच्छी तरह से पता है कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है उसके अंदर, एक राउंड में। अब वहां पर उस पर चढ़कर दाएं बाएं देखा, मगर कुछ भी नजर ना आया। यहाँ से वो नीचे उतर आई और दोबारा सफा पहाड़ी का कसरत किया। दोबारा उन्होंने प्लान किया कि दोबारा जाती हूँ। अब वो बेचैन है, बच्चे को प्यास लगी है, वो बिलबला रहा है, रो रहा है। तो उन्होंने दोबारा इरादा किया, वहां पहुंचे अपने लगते जिगर, मतलब बेटे की बात हो रही है, के लिए पानी तलाश करते हुए उन्होंने सफा मरवा के दरमियान 7 चक्करों में सफाई को मुकम्मल किया। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारा तवाफ होता है वो भी 7 चक्कर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो इंसान थकता नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेट सही है सफा और मरवा के दरमियान कोई कम फासला नहीं है। वो इतना बेताब थी, बार बार चल फिर रही थी, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा फिर सफा। तो इस तरह से होते होते उनके 7 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी दौरान में एक पहाड़ी पर उन्होंने अजीबो गरीब आवाज को सुना। उन्हें आवाज सुनाई दी और शिकस्ता दिल से कहा, मैंने सुना है, क्या कोई मदद का सामान है? उन्होंने आवाज वहां पे सुनी, कैसी? ऐसा दिल, शिकस्ता दिल जिसको उम्मीद ना हो, टूटा हुआ दिल हो। तो उन्होंने वहां पे ये जुमले सुने, ये डायलॉग सुने कि मैंने सुना है, मैंने सुना है, क्या कोई मदद का सामान है? उन्होंने अपनी निगाहों से बेटे को देखा और बड़े दरख्त के नीचे एक आदमी को बच्चे के सर के पास खड़े पाया। ठीक है। अभी वो करीब भी ना आई थी कि उसने अपनी एड़ी को जमीन पर दे मारा। ठीक है। अभी वो करीब ना आई थी कि उसने अपनी एड़ी को जमीन पर दे मारा, और देखते ही देखते पानी का चश्मा जारी हो गया। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाकर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को न जाने कितनी मुसर्रत हुई, उसको किस कदर खुशी हुई होगी कि बच्चे को पानी मिल गया है। उन्होंने मट्टी और पत्थर के साथ पानी को बांध दिया और खुश्क हो जाने के खौफ से उसको सतह जमीन पर बहने से रोक दिया। अगर वो उसे वहां छोड़ देते, अब ये देखें, पानी तो उन्होंने पिला दिया, अब वो पानी चूंकि बहे जा रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया, मट्टी और पत्थर के साथ पानी को बांध दिया, वहां पे कुछ ना कुछ रुकावट लगाई, और खुश्क हो जाने के खौफ से उसको सतह जमीन पर बहने से रोक दिया। मतलब वो खुश्क ना हो जाए, इतना ना निकल जाए कि खुश्क हो जाए।
اگر وہ اسے چھوڑ دیتی، اب یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی ہیں ایسے ہی، اور وہ مٹی اور پتھر کے ساتھ اس پر بند نہ بناتی، تو وہ ایک چشمہ کیسا بن جاتا؟ جاری چشمہ بن جاتا، جیسے رسولوں کے امام، جہانوں کے سردار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آپ پر بہترین درود، بہترین انعام اور بہترین سلام ہو۔ جو قصہ ہم نے بیان کیا ہے وہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اسی پر توکل اور اعتماد کرنے کا ثمرہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ میں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اور انہوں نے جواب میں ہاں کہا تھا۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تب آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اسے حسن ظن رکھا۔ زمزم کا جاری چشمہ دراصل اللہ پر ان کے توکل اور حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہماری